14 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی اور میرے پیٹ میں وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے باپ کا تھا۔ جب ماں کو بتایا تو ماں کہنے لگی تمہیں اس بچے کو پیدا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ دیکھا جائے تو 14 سال کی عمر بہت ہی کم ہوتی ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں 14 سال کے لڑکے لڑکیاں وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاتھ میں موبائل فون جیسی چیز موجود ہے جو وقت سے پہلے ہی ان کو جوان کر دیتی ہے، اور اس عمر کے بچے ان تمام باتوں سے واقف ہوتے ہیں جو پہلے دور میں شادی کے بعد ہی پتہ چلتی تھی۔ آج کے دور میں نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اسی وجہ سے بہت ساری غلط چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ کچھ ایسا ہی میری دوست رانو کے ساتھ بھی ہوا، جو 14 سال کی عمر میں ہی محبت کر بیٹھی، اور پھر ایک ایسا راز کھل کر اس کے سامنے آیا کہ اس کی پوری زندگی بدل کر رہ گئی۔ رانو کا پورا نام تو رانیہ تھا، لیکن سب اسے پیار سے رانو پکارتے تھے۔ اس کی یہ کہانی میں آپ کو اسی کی زبانی سنانے جا رہی ہوں، جسے سن کر شاید آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے کہ کس طرح ایک 14 سال کی لڑکی حاملہ ہو گئی اور اس کے بچے کا باپ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی۔ میرے حاملہ ہونے کی خبر سن کر بھی میری ماں کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ اس طرح خاموش تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور پھر میری ماں نے آہستہ سے مجھ سے ایک بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے باپ کا ہے، تو میری ماں نے کہا کہ تجھے یہ بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا، اور اس کے پیچھے جو وجہ چھپی ہوئی تھی وہ جان کر مجھ پر قیامت گزر گئی۔ میرا نام رانو ہے، میں محلے کے ہی ایک اسکول میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، وہی میری دوستی وسیم سے ہو گئی۔ اسکول کا ماحول بہت زیادہ سخت نہ ہونے کی وجہ سے میرے اور وسیم کے درمیان ایسے جذبات پیدا ہو گئے جو اس عمر کا تقاضا ہوتے ہیں۔ میرے گھر کا ماحول بہت زیادہ دوستانہ تھا، ابا بہت محبت کرنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی سختی ان کے مزاج میں تھی۔ وہ چھوٹی سی چھوٹی بات پر نظر رکھتے تھے، اور اسی وجہ سے آج تک میرا کسی لڑکے سے زیادہ دوستی نہیں ہو سکی۔ لیکن وسیم نے چوری چپکے مجھ سے دوستی بڑھا لی۔ شروع میں مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خوف خود بخود مٹ گیا۔ شروع میں مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہر خوف خود ہی مٹ گیا۔ ہر رات سونے سے پہلے ابا مجھے اپنے کمرے میں بلایا کرتے تھے، میں ان کے پاس جا کر بیٹھتی تو دن بھر کی باتیں کرتی، لیکن اب میری کوشش ہوتی کہ وہ جلد سے جلد سو جائیں اور میں وسیم سے ملاقات کر سکوں۔ محبت کا سلسلہ بڑھا تو دل بغاوت پر آمادہ ہو گیا، اور میں اماں ابا سے چھپ کر ہر رات کو اپنے ہی چھت پر وسیم سے ملنے لگی۔ وہ کچھ دن میرے ساتھ گزارتا، اپنی محبت کا اظہار کرتا اور واپس لوٹ جاتا۔ میں رات کو پڑھائی کے بہانے ابا سے ان کا موبائل فون بھی مانگ لیتی کہ مجھے انٹرنیٹ سے کچھ چیزیں دیکھنی ہیں، اور پھر میں ابا کے سوتے ہی وسیم کو فون کر کے بلا لیا کرتی تھی۔ وسیم کے پاس ذاتی فون موجود تھا، میں اپنی بہت ساری تصاویر بھی اسے کھینچ کر بھیجا کرتی، اور وہ میری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دیتا۔ میری ویران سی زندگی میں جیسے بہار آ گئی تھی۔ میں اماں ابا کی اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے سارا وقت تنہائی میں مبتلا رہتی تھی۔ اماں کو گھر کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی تھی، اور اگر وہ فارغ ہو بھی جاتی تو ابا کی خدمت میں مصروف ہو جاتی۔ میرے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ سے ہی بہت سخت تھا۔ ایسے میں وسیم کا ساتھ پا کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ جیسے جیسے امتحانات قریب آ رہے تھے، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وسیم کی محبت میں میری توجہ پڑھائی سے پوری طرح ہٹ چکی ہے، لیکن میں چاہ کر بھی اپنی پڑھائی پر توجہ نہ دے پائی۔ انہی دنوں اماں کی چھوٹی بہن ثنا خالہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی۔ وہ دوسرے شہر میں رہتی تھیں، اس لیے انہوں نے اماں کو کچھ دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ اماں اور ثنا خالہ 2 ہی بہنیں تھیں۔ نانا نانی کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے مشکل کی اس گھڑی میں ثنا خالہ کے پاس کوئی نہیں تھا، اور بچے کی پیدائش کا وقت قریب آ چکا تھا۔ اماں نے گھر بار ہمارے حوالے کیا اور خود خالہ کے پاس چلی گئیں۔ ہم لوگ گاؤں والے تھے اور گاؤں سے ہی شہروں میں آ کر آباد ہوئے تھے، اس لیے ہمارے باقی کے خاندان والے گاؤں میں ہی رہتے تھے۔ اماں کی جانے پر میں بہت زیادہ خوش تھی کہ اب اماں کے پیچھے آسانی سے وسیم کے ساتھ دن میں ملاقات کر سکوں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ ابا نوکری پر چلے جاتے
और मैं स्कूल से वापसी पर वसीम को साथ ही अपने घर ले आती। लेकिन यहीं से मेरी बदकिस्मती का आगाज हुआ। रात को तो कभी अब्बा ने छत पर आकर मुझे नहीं देखा था, लेकिन एक दिन वो दिन के वक्त किसी काम से घर लौट आए। इत्तेफाक से उस वक्त वसीम मेरे कमरे में ही बैठा था और हम बातें कर रहे थे कि अब्बा मेरे कमरे में ही चले आए। दिन के वक्त मुझे और वसीम को इस तरह तन्हाई में मुलाकात करते देखकर अब्बा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और अब्बा ने एकदम ही वसीम को मारना शुरू कर दिया। अब्बा उसे मारते जाते और कहते जाते कि तूने मेरी इज्जत पर नजर डालने की कोशिश भी कैसे की। मैंने अब्बा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन पर तो जुनून सवार था। वसीम को मार पीट कर भगाने के बाद अब्बा ने मुझे 2 थप्पड़ नसीब किए और कहने लगे, क्या इस दिन के लिए तुझ पर भरोसा करके तुझे स्कूल में डाला था कि तू हमारी नाक के नीचे ऐसी हरकतें करे? मैंने पहली दफा अब्बा को इस कदर गुस्से में देखा था और खौफ के मारे मेरी जान निकल गई थी। अब्बा दोबारा काम पर नहीं गए थे, बल्कि अब्बा ने तो मेरी पहरेदारी शुरू कर दी थी, क्योंकि अम्मा भी घर में मौजूद नहीं थी। सारा वक्त अब्बा की निगरानी में रहने के बाद जब मैं रात को सोने के लिए अपने कमरे में आने लगी तो अब्बा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और गुस्से में कहा कि मैं आज से उनके साथ उनके कमरे में ही सोऊंगी। अब्बा ने जबरदस्ती मुझे अपने साथ बिस्तर पर लिटा लिया और कहने लगे कि जब तक तेरी माँ वापस नहीं आती तुझे यहीं मेरे साथ रहना है। मुझे तुझ पर रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। तेरे अंदर तो बहुत ही इश्क और आशिकी जाग रही है। मैं तो तुझे आज तक बच्ची ही समझ रहा था। अब्बा की बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं 14 साल की एक जवान लड़की थी और अपने अब्बा के साथ एक ही बिस्तर पर बिल्कुल गैर आरामदेह थी। उस पर अब्बा के कड़वे जुमले, लेकिन जो हरकत मैंने की थी उसके बाद मैं अब्बा के आगे कुछ नहीं कह सकती थी। मैं सारा वक्त बिस्तर पर लेटकर करवटें बदलती रहती और अब्बा भी जागता हुआ एक के पीछे एक सिगरेट के कश लगाता रहता। अब्बा का सुर्ख चेहरा बता रहा होता था कि अब्बा के दिल में भांबड़ जल रहे हैं। मुझे तो कुछ देर में नींद लग जाती, लेकिन मैंने अब्बा को सोते नहीं देखा था। अम्मा के आने तक मेरी जिंदगी बहुत ही मुश्किल हो गई। अब्बा ने ना सिर्फ मुझे स्कूल खुद लाना ले जाना शुरू किया, बल्कि मुझे वसीम से दूर रहने की भी ताकीद की। अक्सर वो मेरे करीब आते और मेरा हाथ पकड़कर कहते कि रानो, तू मेरी इज्जत है। अगर तूने कोई गलती आइंदा की तो मैं सीधा तुझे दफन कर दूंगा। अब्बा की बात सुनकर मेरी रूह कांप जाती। अब्बा के रवैये में मेरे लिए वाज़ेह तब्दीली आई थी। वो कुछ अलग ही अंदाज में पेश आने लगे थे। अक्सर मेरे करीब आते और कहते कि मुझे तो पता ही नहीं चला रानो कि तू कब इतनी बड़ी हो गई। मुझे अब्बा की नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होती। मैं अब्बा से कतराने लगी थी। अब्बा की मार वसीम को ऐसी पड़ी थी कि उसने खुद मुझसे नजरें चुरा ली थी और यही बात मेरे दिल को काट रही थी। हर पल मोहब्बत का दम भरने वाला वसीम मेरे अब्बा के 2-4 थप्पड़ों के आगे ही ढेर हो गया था। मेरे दिल में एक अजीब सी आग चल रही थी। मैं वसीम से मोहब्बत करती थी और मेरी नजर में ये कोई गुनाह नहीं था। सना खाला के घर बच्चे की पैदाइश के बाद अम्मा वापस लौट आई थी। हैरत की बात यह थी कि अब्बा ने अम्मा को वसीम के बारे में कुछ भी नहीं बताया था और ना ही अम्मा के आने के बाद मेरी पहरेदारी की थी। अब्बा ने इतनी बड़ी बात अम्मा से क्यों छुपाई थी? मुझे ये बात समझ नहीं आई थी। मैं भी वसीम को भुलाकर इम्तिहान की तैयारी में मसरूफ हो गई, लेकिन इम्तिहानों से कुछ दिन पहले ही मेरी तबीयत अजीब सी रहने लगी। पहले तो मुझे लगा कि शायद तैयारी ना होने की वजह से मुझ पर ये घबराहट का एहसास तारी हो गया है। मैं पढ़ने के लिए बैठती तो मेरी तबीयत अजीब सी होने लगती और आहिस्ता आहिस्ता मुझे घबराहट के साथ कैब भी होने लगी, तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। मेरी तबीयत देखकर अम्मा कहने लगी कि तुम सारी रात जाग कर पढ़ाई करती हो, इसीलिए तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। बेहतर यह है कि तुम वक्त पर सो जाया करो। दरअसल मैंने अम्मा को ये बताया था कि मैं छत पर खुली हवा में बैठकर रात को पढ़ाई करती हूँ और इसी वजह से अम्मा को मेरा छत पर जाने पे कोई एतराज नहीं था। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत में बोझलपन आ रहा था और मुझे अपने वजूद में तब्दीलियां महसूस होने लगी थी। अम्मा बावर्ची खाने में खाना पकाती तो कमरे में ही उसकी खुशबू से मेरा जी मतलाने लगता। मेरा खाना पीना सब कुछ खत्म हो गया था। मैं कोई भी खाने की चीज देख लेती तो मेरी तबीयत ही अजीब हो जाती। अम्मा को लग रहा था कि मेरे खाने पीने पर नजर हो गई है, इसीलिए अम्मा मेरी नजर उतारने लगी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन मेरी स्कूल की दोस्त समीना, जिससे कुछ दिनों पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी, मुझे देखकर कहने लगी, रानो जैसी तेरी हालत है
ऐसी तो मेरी आपा की हालत थी जब वो पेट से थी। तुझे देखकर मुझे आपा की याद आ रही है। समीना की बात सुनकर मुझे दिन में तारे नजर आ गए थे। मैं इतनी भी बच्ची नहीं थी कि मुझे समीना की बात और अपनी बदलती हुई हालत का एहसास ना होता, लेकिन मेरा वसीम के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था जिसकी वजह से मैं हामला हो जाती। वसीम भी मेरी तरह ही एक कम उम्र लड़का था। हम दोनों के दिलों में जज्बात जरूर थे, लेकिन कोई जिनसी ताल्लुक कायम नहीं हुआ था। 1 महीना और गुजरा तो मुझे अपना पेट भी बढ़ता हुआ महसूस हुआ। अब तो इम्तिहान भी खत्म हो चुके थे, इसलिए घबराहट होने की कोई वजह बाकी नहीं बची थी, और इसीलिए मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि मैं भी समीना की आपा की तरह हामला हो चुकी हूँ। एक दिन स्कूल में मौका देखकर मैंने उससे बात की और उसे बताया कि मैं हामला हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उंगली उठाकर मुझे तनबीह करते हुए कहने लगा, रानो, ऐसी कोई गलत बात करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। मेरा तुझसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। तेरा अब्बा पहले ही मेरा दुश्मन बन चुका है, और तेरे अब्बा ने मेरे बाप से मेरी शिकायत भी कर दी है। मेरे बाप ने मुझे बहुत मारा है। अब तुम क्या चाहती है? मुझे घर से निकलवा कर दम लेगी? मैं तो तेरे चक्कर में पड़कर ही गलती कर बैठा। वसीम ने साफ साफ लफ्जों में अपना दामन छुड़ाते हुए मेरी मोहब्बत से अपने हाथ झाड़ दिए थे, और ये अंदाजा तो मुझे भी था कि ये बच्चा वसीम का नहीं है। तो फिर ये बच्चा किसका था? जबकि मेरी जिंदगी में वसीम के अलावा कोई मर्द नहीं था, और जो दूसरा ख्याल मुझे आया वो मेरी रूह लर्जा देने के लिए काफी था। वसीम के बाद अगर मेरी जिंदगी में कोई था तो वो सिर्फ मेरा अब्बा था। जितने दिन मेरी माँ घर नहीं थी, मैं अब्बा के साथ ही सोई थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात मचल रहे थे। इतनी बड़ी बात अब्बा ने अम्मा से क्यों छुपाई थी कि उन्होंने मुझे और वसीम को रंगे हाथों पकड़ा है? अम्मा के आने के बाद ना ही अब्बा ने मेरी पहरेदारी की थी और ना ही मुझे अपने साथ अपने कमरे में सुलाने की कोई बात की थी। वो चाहते तो अम्मा को सारी बात बता भी सकते थे, लेकिन अब्बा ने ऐसा कुछ नहीं किया था, और उसके पीछे क्या वजह थी ये मुझे मालूम नहीं था। मैं वापस घर आ गई थी और अपना कमरा बंद करके ज़ारो कतार रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, और शाम के वक्त मैं अपने कमरे में ही बेहोश हो गई तो अम्मा मुझे लेके हॉस्पिटल दौड़ पड़ी। थोड़ी देर में मेरे सारे अंदेशे सच साबित हो गए थे। समीना ने ठीक ही कहा था, मैं उसकी आपा की तरह हामला हो चुकी थी, लेकिन ये बच्चा वसीम का नहीं था बल्कि मेरे बाप का था, और इस बात पर मुझे 100% यकीन था। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अम्मा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा था और ना ही मुझसे ये पूछा था कि ये बच्चा किसका है। वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आई थी। सारा रास्ता भी हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। घर लाकर अम्मा ने मुझे मेरे कमरे में बिठाया और कहने लगी, रानो, आज से अपना बहुत ख्याल रखना और एहतियात से हर काम करना। कोई वजन वाली चीज ना उठाना, और आज से तुझे स्कूल जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। अम्मा की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी कि अपनी कुंवारी बेटी के हामला होने की खबर सुनकर अम्मा को कोई फिक्र लाहक नहीं हुई, बल्कि वो तो ऐसे पेश आ रही थी जैसे मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ जो शादी की फौरन बाद ही हामला हो गई हो। मैंने रोते हुए अम्मा से कहा कि आप मेरे साथ ऐसे क्यों पेश आ रही हैं? मैं बगैर शादी के हामला हूँ। क्या आप मुझसे नहीं पूछेंगी कि ये बच्चा किसका है और ये सब कैसे हुआ? अम्मा ने एक अजीब सी नजर मुझ पर डाली और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये बच्चा मेरे शौहर का है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती सिवाय इसके की तरह ख्याल रखूं और ये बच्चा खैरियत से पैदा करवा दूं। रानो, तुझे आज से अपना बहुत ख्याल करना होगा और इस बच्चे को सही सलामत पैदा करना होगा। अम्मा की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी माँ ये कैसी बातें कर रही थी? मैं अपने ही बाप के बच्चे की माँ बनने वाली थी और मेरी माँ ऐसे ख्याल रखने की बात कर रही थी जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। मैं रोते हुए अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा से कहा कि मुझे ये बच्चा पैदा नहीं करना है, दुनिया वाले हम पर ठोकेंगे। मैं एक ऐसे बच्चे की माँ नहीं बन सकती जिसका बाप मेरा ही बाप हो। अम्मा कहने लगी कि ये सब तो तुझे उस वक्त सोचना चाहिए था जब तूने अपने बाप के सामने जवान होने का सबूत दिया। वो जान गया कि तेरे दिल में जज्बात पनपने लगे हैं। वो इतने सालों से तुझे बच्ची समझ रहा था, लेकिन तूने अपने आशिक को घर बुलाकर साबित कर दिया कि तू बड़ी हो चुकी है और वो तुझे इस्तेमाल कर सकता है। अब तुझे ये बच्चा पैदा करना ही होगा क्योंकि। और उसके बाद मेरी माँ ने जो बात मुझे बताई वो सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये कैसे मुमकिन था? मुझे यकीन ही नहीं आया था। मेरा बाप सालों से मुझ पर नजर जमाए बैठा था।
और मैं इस बात पर बिल्कुल नाआशना थी। अम्मा कहने लगी कि इसी दिन के लिए मैं तुझ पर सख्ती करती थी, लेकिन मेरे पीछे वसीम को घर बुलाकर तूने मेरी सालों की मेहनत ज़ाया कर दी। अम्मा का अंगार लहजा मुझे एहसास दिला रहा था कि अम्मा के अंदर एक अलाव भड़क उठा है, लेकिन वो अब्बा की वजह से खामोश है। मुझे तो अब अब्बा को अब्बा कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मेरे हामला होने की खबर के साथ ही हर रिश्ता बदल कर रह गया था। मैं सारा दिन कमरे में बैठी रोती रही थी। अम्मा ने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रात के वक्त अब्बा घर लौटा तो अम्मा ने शायद उसे भी ये खबर सुना दी, इसीलिए वो फौरन मेरे कमरे में चला आया। खुशी अब्बा के चेहरे से छलक रही थी। वो बाप बनने की खबर सुनकर बहुत खुश था। अब्बा मेरे करीब आकर बैठ गया और मेरे बालों पर हाथ फेर कर कहने लगा, वाह रानो वाह, तुमने मेरी जिंदगी में कैसे रंग भर दिए हैं। कई सालों बाद मैं बाप बनने की खुशी को महसूस कर रहा हूँ और ये खुशी मेरे लिए बिल्कुल अनोखी है। अब्बा ने जैसे ही आगे बढ़कर मेरे रुखसारों को चूमा तो मेरा तन बदन दहक उठा। मैंने फौरन अब्बा को पीछे हटाया तो वो कहने लगा, अरे पगली, अब तेरे और मेरे दरमियान कैसी शर्म। तुझे तेरी अम्मा ने बताया तो है कि तुझे यह बच्चा पैदा करके मेरी बीवी की हैसियत हासिल करनी होगी। आज से तू मेरे कमरे में ही रहेगी और मेरी बीवी कहलाएगी। अब्बा की बात सुनकर मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। जिसे सारी जिंदगी मैंने बाप का दर्जा दिया था, मैं उसके साथ उसके कमरे में बीवी की हैसियत से कैसे रह सकती थी। मुझे इस वक्त पर अफसोस हो रहा था जब वसीम मेरी जिंदगी में आया और मैंने उसे तन्हाई में मिलने के लिए घर बुलाया। ना ही अब्बा मुझे और वसीम को रंगे हाथों पकड़ता और ना ही मेरा और अब्बा का कोई ताल्लुक बनता। मैंने अब्बा के फोन से वसीम को अपनी जितनी भी तस्वीर भेजी थी वो सब की सब अब्बा के हाथ लग गई थी। और कभी कभी जज्बात में आकर मैं कुछ फहश वीडियोस भी देख लिया करती थी। अब्बा को उनका भी इल्म हो गया था और इसीलिए उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो गया था कि मैं जवान हो गई हूँ। मैंने रोते हुए अब्बा से कहा कि ना ही मेरी अम्मा की जगह ले सकती हूँ और ना ही उनका बच्चा पैदा करना चाहती हूँ। लेकिन अब्बा ने मेरी एक न मानी। वो गांव वाले थे और ये बात उनकी मर्दानगी पर ज़र्ब थी कि मैं उनके फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रही थी। अब्बा मुझे जबरदस्ती अपने कमरे में ले गया और अम्मा को मेरे कमरे में मुंतकिल कर दिया। मैंने उस शख्स की जिंदगी में बीवी की हैसियत हासिल कर ली थी जिसे सारी जिंदगी मैंने बाप का दर्जा दिया था और पूरे 9 महीने बाद मैं उसके बच्चे की माँ बन गई थी। मुझे ये बच्चा मजबूरन पैदा करना पड़ा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जो राज बताया था वो जानकर मैं मजबूर हो गई थी। मेरा वो बाप जिसे मैं बाप समझती थी वो दरअसल मेरा शौहर था, जिससे मेरा निकाह उस वक्त पढ़ा दिया गया था जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। मेरी माँ मेरी अम्मा नहीं बल्कि सौतन थी और वो बांझ थी। इसी वजह से मेरे अब्बा ने मुझसे 2 साल की उम्र में ही दूसरा निकाह कर लिया था। मैं अम्मा की चचाजाद बहन थी और अम्मा के बांझ होने का खमियाजा मुझे भुगतना पड़ा था। मेरे माँ बाप का बचपन में ही इंतकाल हो गया था, इसलिए मेरी अम्मा के माँ बाप यानी मेरे ताया ताई ने अपनी बेटी के घर को बचाने के लिए मुझे दांव पर लगा दिया था। गांव में ये सब बहुत आम सी बातें थी, इसलिए मेरा और अब्बा का निकाह किसी को भी मायूब मालूम ना हुआ। अम्मा को लगा था कि मेरे जवान होने तक अब्बा बूढ़ा हो जाएगा और फिर अम्मा हमारे रिश्ते को खत्म करवा के अपनी मर्जी से मेरी कहीं भी शादी करवा देंगी। लेकिन वसीम की वजह से 14 साल की उम्र में ही मैं अब्बा की नजरों में जवान साबित हो गई। अब्बा ने गुस्से में मुझे अपने कमरे में सुलाया तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सके और उनकी नजर में तो मैं उनकी बीवी ही थी, इसलिए वो अपनी हर हद पार कर गए। खुदा की कुदरत ऐसी हुई कि मैं हामला भी हो गई। जब तक मैं हामला नहीं थी उन्होंने इस बात को कभी मेरे सामने ना आने दिया था कि वो मेरी अम्मा नहीं बल्कि सौतन है, क्योंकि वो मुझे इस रिश्ते की परछाई से भी दूर रखना चाहती थी। लेकिन अब जब मैं हामला हो चुकी थी तो वो बेबस हो गई थी और उन्हें खुद मुझे सारा सच बताना पड़ा था। वसीम की मोहब्बत में मेरी आंखों पर पट्टी बन गई थी और वो पट्टी उतरने के बाद जो सच मुझे नजर आया था वो हद से ज्यादा भयानक था। आज मैं एक बेटी की माँ बन चुकी हूँ और अपने शौहर यानी उस शख्स के साथ रह रही हूँ जिसे मैं अपना बाप मानती आई थी। मेरे पास इस रिश्ते को कबूल करने के सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि क्या इस तरह कम उम्री में नाबालिग बच्चों के निकाह कर देना जायज है? आज भी मेरे गांव में बहुत सी नाबालिग बच्चियों का निकाह अपने मकासद के तहत करवा दिया जाता है, कभी जमीनों के लिए तो कभी अपनी बेटियों का घर बचाने के लिए।
اور جب جوان ہونے پر یہ سچ کھلتا ہے تو بہت ہی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میں آج بھی اسی تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ آپ لوگ اپنی رائے دے کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا میرا خاموشی سے یہ رشتہ قبول کرنا ٹھیک ہے یا پھر مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ میں کون سا راستہ اختیار کروں، میں خود بھی نہیں جانتی۔